الحمدللہ پہلے سے زیادہ علم سے آپ پہلے سے زیادہ تعلیم یافتہ ہو، پہلے سے زیادہ مسجدیں بھری. ایسی بات نہیں ہے کہ آپ تعلیم کے میدان میں زیرو ہو، ایسی بات نہیں ہے کہ عام عمل کے میدان میں زیرو ہو. آپ تعلیم گاہ میں بھی کثرت سے آ رہے ہو، عبادت خانے میں بھی کثرت سے آ رہے ہو، لیکن اس کے باوجود اثرات نہیں ہے، تاثیر نہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے، دو وجہ ہے. پہلی وجہ رزق حلال، دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے تعظیم نہیں سیکھا ہے، ادب نہیں سیکھا ہے، پیرانے اسام کی جوتیوں میں بیٹھنا نہیں سیکھا ہے. اور جس کو جو بھی مرتبہ ملا ہے علم کی بنیاد پر نہیں ملا ہے، سن لو، عمل کی بنیاد پر نہیں ملا ہے، اس علم اور عمل کی بنیاد پر مرتبہ ملا ہے جس علم اور عمل میں عشق شامل تھا، ادب شامل تھا. اگر علم اور عمل میں ادب نہیں شامل ہے، وہ علم باعث تباہی ہے، وہ عمل باعث تباہی ہے. اللہ کا کرم علم کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے، اللہ کا کرم ادب کی بنیاد پر ہوتا ہے. دیکھا نہیں آپ نے حضرت بلال کو رسول اللہ نے حبش سے بلا لیا، اویس کو قرن سے بلا لیا، صہیب کو روم سے بلا لیا، بشر حافی کو شراب کھانے سے چن لیا، حبیب عجمی کو سود خوروں کی جماعت سے چن لیا، حسین بن عیاض کو رہزنوں کے گروہ سے چن لیا. حضرت سرکار سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا سگا چچا ہے آدم، وہ جہنم میں جا رہا ہے. ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہے، جہنم میں ایندھن بن رہا ہے. آخر یہ ٹھوکر کیسے کھائے اور وہ کامیاب کیسے ہو گئے؟ پتا چلا نگاہ مصطفیٰ میں، نگاہ پیغمبر میں، نگاہ رسول میں وہی علم قبول ہے جس علم میں ادب ہوگا، جس علم میں خاکساری ہوگی. یہی وجہ ہے پاک پروردگار نے کائنات کا سب سے بڑا پڑھا لکھا کون ہے؟ عزازیل، جس کا نام معلم الملائکہ ہے، جس کا خطاب نام کیا ہے؟ عزازیل، خطاب معلم الملائکہ. مولانا عثمان صاحب، ہمارے مصباحی صاحب، ہمارے پرنسپل صاحب، ہمارے ناظم صاحب، یہ چاہے جتنی پڑھائی پڑھ لیں، یہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو پڑھائیں گے، لیکن ابلیس اتنا پڑھا لکھا تھا کہ وہ فرشتوں کو پڑھاتا تھا، وہ معلم ملائکہ تھا. ملائکہ کو پڑھانا آسان کام ہے، اس کے باوجود رسول ہو گیا، اس کے باوجود راندے درگاہ ہو گیا. وجہ کیا ہے؟ اس نے سب سیکھا تھا، احترام پیغمبر نہیں سیکھا تھا، تعظیم پیغمبر نہیں سیکھا تھا. یہی وجہ ہے عبادت برباد، روزے برباد، زہد برباد، تقوی برباد، زہد پرہیزگاری برباد. پاک پروردگار نے اس کو فرشتوں کی جماعت سے نکال کے جہنم کے بھی پھینک دیا. اور قرآن کی ایک سورہ ہے سورہ کہف، سورہ کہف میں جب آپ پڑھو گے تو کتا ہے جس کا نام قطمیر ہے، کتا ولیوں کی صحبت میں ہے. سبحان اللہ. یہ سرکار سیدنا شیخ سورتی رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں بیٹھنے والے وفاداروں، آج تحیہ کر کے جاؤ، ہم اپنی نسلوں کو احترام ولی بتائیں گے. مجھے آپ بتاؤ کتا ناپاک ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اصحاب کہف جا رہے تھے، غار میں بیٹھے، جیسے اصحاب کہف غار میں گئے، کتے نے صرف اتنا ہی ادب کیا ہے، آکے ادباً احتراماً جہاں ولی کا قدم تھا وہیں اپنا سر رکھ دیا، وہیں بیٹھا تھا. رب نے پوچھا اے انسانوں یہ بتاؤ، اے عارفوں، اے نیک بندو یہ بتاؤ تمہاری تعداد کتنی ہے؟ اصحاب کہف نے اپنا نام اپنے آپ کو شمار کیا، 1 2 3 4 5 6 7 8. کہا مولا ہم آگ ہیں. رب نے کہا ایک کو چھوڑ رہے ہو، پھر دوبارہ گنو. پھر انہوں نے گننا شروع کیا. رب نے کہا ایک کو چھوڑ رہے ہو. جب انہوں نے دروازے پہ غور کیا کتا بیٹھا ہوا تھا. رب نے کہا کہاں اس کو چھوڑ رہے ہو؟ اے اصحاب کہف، اے میرے نیک بندو، اے میرے چاہنے والوں، اے وفاداروں، جہاں جہاں تم رہو گے وہی وہی کتا رہے گا، وہی وہی کتا رہے گا. تبھی تو بریلی کے تاجدار نے کہا ہے تجھ سے در سے ساتھ اور ساتھ سے ہے مجھ کو نسبت. واحد اعلیٰ حضرت نے دور سے اپنے آپ کو جوڑا ہے، تجھ سے در سے ساتھ اور ساتھ سے ہے مجھ کو نسبت.
मेरी गर्दन में रहे दूध का डोरा तेरा। कहते हैं आदतें सब बिगड़ गई, अब तो न रो। आदतें सब बिगड़ गई, मेरे करीब पहले ही लुकमाए तर, मेरे करीब पहले ही लुकमाए तर खिलाया। तो सुनो, आलिम तो बहुत है, आलिम की कमी नहीं है। आला हजरत से पहले भी बहुत बड़े बड़े आलिम गुजरे हैं, लेकिन वजह क्या है? आला हजरत का तस्करा हो रहा है। मिंबर हो, महराब हो, उलमा हो, सूफिया हो, बगैर आला हजरत के काम नहीं चलने वाला है। तो आला हजरत को भी शोहरत इल्म से नहीं मिली है। इल्म का जहां तक मकाम है, आला हजरत दो हाथ से लिखते थे। एक अंग्रेज प्रोफेसर है जिसका नाम चर्चिल है, वो भी दो हाथों से लिखता था। आखिर इमाम अहमद रजा ये शोहरत मिली कैसे, ये मकाम मिला कैसे, ये उलूम मिला कैसे? आला हजरत कहते हैं अगर मिला है अहमद रजा को तो सिर्फ इश्क़ रसूल की बुनियाद मिला है। क्या तुमने देखा नहीं है? एक गुमनाम सैयद बरेली में आ पड़े, हम उनकी पालकी में लाशौरी के तौर पर बैठ गए। शेरो अदब करना सीखो, ताज़ीम में उलमा सीखो। आला हज़रत कहते हैं मैं उसी पालकी में बैठ गया। वाक़या बताना मकसद नहीं, चंद कदम चले थे कि मुस्तरिब हो गए, आंखें अश्कबार हो गई, सावन भादों की तरह आंखें आंखें बरस रही है। आला हज़रत ने कहा रुक गए लोग। आला हज़रत नीचे आए। अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी साथ हैं, अल्लामा अमजद अली साथ हैं, अल्लामा सैयद नईमुद्दीन आसाद हैं, ये सारे उलमा साथ हैं। अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी पूछते हैं हुजूर मुस्तरिब होने का मुस्तरिब क्यों हो गए सरकार? कौन सी गलती हो गई हमसे? आला हज़रत ने कहा खूने रसूल की महक आ रही है, इसमें कोई सैयद तो नहीं है। जिसने पालकी उठा रखा था उसका चेहरा अफसुर्दा हो गया, जर्द हो गया, चेहरा पीला पड़ गया, शर्म से आंखें झुक जाती हैं, चेहरे पर गुबार की जमी हुई थी। फर्द दम से उस आले रसूल ने अपना सर नीचे कर लिया, चादर करम से अपने चेहरे को छुपा लिया। वाह रे वाह अहमद रजा साहिब बसीरत, साहिब करामत। एक मिनट नहीं लगा तह तक पहुंचने के लिए। आला हजरत सामने आ गए, निगाहों में निगाहें डालकर आला हजरत ने कहा मुझको खूने रसूल की खुशबू आ रही है। आले रसूल ने सर झुका कर कहा सरकार कपड़ा पोसीदा है, गर्दो गुबार की तह जमी हुई है चेहरे पर, गुर्बत के आसार अंग अंग से जाहिर हो रहे हैं। कपड़े से जाहिर हो रहा है कि नाने शबीने का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, बच्चों की किफालत नहीं हो पा रही है। आले रसूल ने तड़प कर कहा अहमद रजा ये क्या तुमने किया? अहमद रजा मजदूर से काम लिया जाता है, बिरादरी नहीं पूछी जाती है। मजदूर से काम लिया जाता है, जात नहीं पूछी जाती है। अहमद रजा जो सरबस्ता राज था वो तुमने पोशियाया कर दिया। अहमद रजा कोई हुनर नहीं है, खानदाने रिसालत की शहजादियां इसी सहरा के गोशे में आबाद है। क्या करूं, सुबह से शाम तक रोटी का इंतजाम करना ही करना है। चलाता हूँ निगाहों के बीच में, सुबह से शाम तक काम करता हूँ, जो मिलता है लेके चला जाता हूँ। आप होते तो मुस्कुरा के चले जाते, हम होते तो अव्वल को ये काम करते ही ना। लेकिन अपने वक्त का फकीह आज़म, अपने वक्त का इमाम आज़म, अपने वक्त का इमाम शाफ़ी जितना कह दिया जाए उतना काम है। तक़वा, फिक्र, ज़ुहद, वक़ार, मंतिक़, फ़लसफ़ा, नहव, दुनिया के सारे उलूम में इकट्ठा किया जाए, अहमद रज़ा पर जाता है। ऐसा फकीह का रद्द अमल देखो, इतना कहना था। आला हज़रत उठे, इसीलिए इक़बाल ने कहा बीसरापा सोख अंदर तलब इंतहाई शाखा सशदाब। आला हज़रत उठे, अपना अमामा शरीफ ऐसे उतारा है, अपना ताज उतारा है। हाँ हाँ, जिस्म की ज़ीनत सर है, सर की ज़ीनत अमामा है, जिस्म की ज़ीनत सर है, सर की ज़ीनत ताज है। आला हज़रत ऐसे ताज उतारते हैं, आली रसूल के कदमों में रख देते हैं। रखने के बाद ज़माने ने देखा है कभी इस पाँव को छूने, कभी उस पाँव को छूने, इज्जत कुर्बान, शोहरत कुर्बान, वक़ार
हमारा हाल क्या है, पीर साहब आते हैं तो झाड़ू देना हम तो ही नहीं समझते हैं। अगर पीर साहब आ जाए रोड पर तो कोई जल्दी हाथ नहीं चूमता है। ऐसा ना हो कि पड़ोसी देख ले, यार तू इतना झुक गया, देखे तू चूमत रहा। अरे पीर तो बहुत दूर है, आप अपने माँ बाप के हाथ पैर को चूमना तो ही नहीं समझते हो। कैसे मुसलमान को कहते हो हमको इज्जत नहीं मिल रही है। वाह रे आला हजरत, सारा वक़ाफ़ कुर्बान कर दिया। आले रसूल से आला हजरत कह रहे हैं शहजादे अहमद रजा से लाशऊरी में गलती हो गई है। अहमद रजा को गली का मसला नहीं है, खानकाह का मसला नहीं है, मस्जिद के गोशे का मसला नहीं, चौराहे का मसला है। सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेटा, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है। ऐसे नहीं मकाम मिलता है, ऐसे नहीं जगह मिलती है। अपने आप को कुर्बान करना पड़ता है, नफ्स पर छुरी चलानी पड़ती है, तकवा अमल ज़ोहद को पाना है, रखना पड़ता है, शेख के कदमों में अपना ताज कुर्बान करना पड़ता है, तब जाके ताजु शरिया फरमाते हैं। जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। अगर वो कुर्बान अगर वो कबूल कर ले तो ताज ताज है, सर सर है, सजदा सजदा है, रुकू रुकू है, और अगर फेंक दे तो इसकी कोई कीमत नहीं है। और मैं कहता हूँ कोई अगर ये चाह ले कि अमल की बुनियाद पर उसे जन्नत मिलेगा ना, जब तक अमल में इश्क ना शामिल हो, अदब ना शामिल हो, यही वजह है आला हज़रत इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं, करीब अपने कलाम का सदका नहीं मिले कद्र को न शर्मा। तू वो रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। इतनी बड़ी कुर्बानी आला हजरत ने दिया, जब जाके आज आला हजरत के आलम पर छा गए। आज हम कहाँ खड़े, और आगे बढ़ो। ये शान औलिया कॉन्फ्रेंस करने वालों, आओ जरा देखो अजमत मुस्तफा को बाद में देखना, पहले गुलामे मुस्तफा देखो, पहले गुलामाने रसूल का हाल देखो। कौन नहीं जानता हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, बहुत बड़े सहाबी रसूल हैं। 5000 हदीसें आपसे रावी हैं। कितनी? 5000 हदीसों के रावी हैं हजरत सैयदना अबू हुरैरा। उम्र 82 साल की है, मस्जिद नबवी में हदीस का सहाबा को दर्स दे रहे हैं। अचानक निगाह पड़ी, क्या देखा? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनकी उम्र 40 साल की है, सरकार कहीं घोड़े से चल कर आए, जैसे जमीन पर उतरे तो जमीन नम होने की वजह से आपके पांव में मिट्टी लग गई। जैसे मिट्टी लगी, ये मंजर देख रहे थे हजरत अबू हुरैरा, चीख उठे, तड़प गए, रो कर कहा, चीख कर कहा, करीब इब्ने करीम रुक जाओ, सखी इब्ने सखी रुक जाओ, वली इब्ने वली रुक जाओ, हुसैन इब्ने अली ठहर जाओ। ये कहकर हजरत अबू हुरैरा की कमर खम हो चुकी है। अरे 82 साल की उम्र है, दौड़ पड़े। आज माँ बाप मर रहे हैं, बेटा हाथ पैर दबाने के लिए तैयार नहीं है। किस मुंह से कहते हो हम मुहब्बाने अहले बैत हैं, किस मुंह से कहते हो मौलिया इकराम के चाहने वाले हैं। मिटाना पड़ेगा आपको, अपने आप को खत्म करना पड़ेगा, ये नफ्स को मारना पड़ेगा, खिदमत खल्क करनी पड़ेगी। लफ्जों से कोई बादशाह नहीं बनता है, स्टेज पर लफ्ज़दार बात करने से कोई दास्तान नहीं बनता है। अमल करने से, कुर्बानी देने से, जानिसानी पेश करने से, लोगों की जूतियों में बैठने से फराती मिलते हैं। बाहर हजरत अबू हुरैरा चीख उठे, दौड़ पड़े। अच्छा, जब आप बाहर गए तो हजरत अबू हुरैरा का अमल देखो। आप बैठ गए, उम्र 82 साल की है, दाढ़ी पक चुकी है। हजरत अबू हुरैरा बैठे तो आपने अपना मामा शरीफ उतारा। उतारने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के पांव को साफ करने लगे। हजरत इमाम हुसैन पीछे हट गए, कहा बाबा ये क्या काम कर रहे हो? बाबा ऐसा ना करो, आप तो मेरे नाना के दीन के मुहद्दिस हो। जैसे कहा आप मेरे नाना के दीन के मुहद्दिस हो। हजरत अबू हुरैरा ने पांव पकड़ लिया। एक करीम इब्ने करीम, ऐसा ना कहो। एक करीम इब्ने करीम, जो कुछ मिला है ये आपके नाना के दर से मिला है, जो कुछ मिला ये आपके नाना का करम है। दीन मिला, इस्लाम मिला, ये आपके नाना का करम है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे सहाबी रसूल जो तमाम मुहद्दिसों के
सहाबा इकराम में सबसे ज्यादा हाफिज हदीस हजरत अबू हुरैरा है। कदमे हुसैन, नालैने हुसैन, दरे हुसैन, जानशीने रसूल हजरत सैयदना इमाम हुसैन के कदमों में अपना सर रख के ज़माने को सहन दे दिया कि सुनो, पहले अदब है तब इल्म है, पहले अदब है तब इबादत है, पहले अदब है तब ज़ुहद है, पहले अदब है तब किरदार है। अगर अदब होगा तब अमल में रोशनी पैदा होगी, तब अमल में निखार पैदा होगा। यही वजह है आला हजरत ने अपने अमल को वसीला नहीं बनाया, आला हजरत ने अपने फिक़ह को वसीला नहीं बनाया। आला हजरत वसीला किसको बना रहे हैं? आला हजरत कहते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस लाडला बेटा तेरा।